امریکی صدر روس یوکرین جنگ بندی کے لیے متحرک۔ روس یوکرین جنگ بندی مذاکرات فوری شروع ہوں گے۔ شرائط دونوں ممالک خود طے کریں گے۔ روسی صدر پیوٹن سے گفتگو بہت مثبت رہی۔ روس جنگ بندی کے بعد امریکہ کے ساتھ بڑے پیمانے پر تجارتی تعلقات چاہتا ہے۔ جرمنی، فرانس، اٹلی اور فن لینڈ کو بھی اس پیش رفت سے آگاہ کر دیا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی واشنگٹن میں میڈیا سے گفتگو۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ٹیلی فونک گفتگو 2 گھنٹے سے زائد جاری رہی۔ روسی صدر نے بھی بات چیت کو مثبت اور تعمیری قرار دے دیا۔ کہا کہ جنگ بندی کی حمایت کرتے ہیں، یوکرین کے ساتھ جنگ بندی پر مبنی یادداشت کے لیے کام کرنے کو تیار ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان فائر بندی قطعی طور پر 2 طرفہ تھی۔ ٹرمپ کا اس میں کوئی کردار نہیں تھا۔ بھارتی سیکرٹری خارجہ وکرم مسری نے جنگ بندی میں امریکی کوششوں کا سرے سے انکار کر دیا۔ بھارتی اہلکار نے صدر ٹرمپ کو بھی جھٹلا دیا۔ امریکی صدر ٹرمپ دنیا کے مختلف مقامات پر جا کر 7 بار کہہ چکے جنگ بندی انہوں نے کرائی۔ بھارتی سیکرٹری خارجہ نے پارلیمانی کمیٹی کو بریفنگ میں کہا کہ صدر ٹرمپ نے ہم سے بیچ میں آنے کی اجازت نہیں لی، وہ خود ہی اسٹیج پر آنا چاہتے تھے اور وہ آ گئے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان تنازع روایتی جنگ کے دائرے میں رہا اور پاکستان سے کسی بھی ایٹمی یا حملے کے اشارے نہیں ملے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق پارلیمانی کمیٹی کی طرف سے بار بار پوچھا گیا کہ پاکستان سے جنگ میں کتنے بھارتی طیارے تباہ ہوئے، لیکن وکرم مسری کا قومی سلامتی کا بہانہ بنا کر جواب دینے سے انکار کرتے رہے۔ دوبارہ جنگ مسلط کی گئی تو دشمن تیار پائے گا۔ وطن عزیز کے ایک ایک انچ کا دفاع کرنا اچھی طرح جانتے ہیں۔ بری فوج نے فتح میزائل اور دیگر ہتھیاروں سے دشمن کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ فضائیہ کے شاہینوں نے جدید ٹیکنالوجی سے دشمن کو نقصان پہنچایا۔ بہادر افواج کا یہ سبق دشمن قیامت تک یاد رکھے گا۔ ہماری افواج کی مکمل تیاری سے دشمن ہمارا بال بھی بیکار نہ کر سکا۔ افواج پاکستان نے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ ہماری بھرپور تیاری سے دشمن کو بحری محاذ پر جارحیت کی ہمت نہ ہوئی۔ پاک بحریہ نے بندرگاہوں اور تجارتی راستوں کا بھرپور تحفظ کیا۔ وزیر اعظم کا پاکستان نیوی ڈاک یارڈ میں افسروں اور جوانوں سے خطاب، کہا کہ پاک بحریہ دوارکا کی تاریخ دہرانے کو تیار تھی۔ پاک بحریہ کی مستعدی کی وجہ سے بھارتی ایئر کرافٹ کیریئر وکرانت آگے نہ بڑھ سکا۔ وزیر اعظم کا PNS مہران کے لیفٹیننٹ یاسر شہید کو خراج عقیدت۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو مین آف پیس قرار دے دیا، کہا ٹرمپ نے جنگ بندی میں کلیدی کردار ادا کیا۔ امریکی صدر نے اچھے اور خیر خواہ دوست کا کردار ادا کیا۔ چین نے ہر مشکل گھڑی میں پاکستان کا مکمل ساتھ دیا۔ ترکیہ، سعودی عرب، قطر، UAE اور دوسرے دوست ملکوں کی قیادت۔ وزیر اعظم کا پاکستان نیوی ڈاک یارڈ کا دورہ، نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے استقبال کیا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر اور ایئر چیف ظہیر احمد بابر سدھو بھی ہمراہ تھے۔ وزیر اعظم کا آپریشن بنیاد مرصوص میں پاک نیوی کے اہم کردار پر خراج تحسین۔ وزیر اعظم نے PNS تیمور پر سوار ہو کر افسران سے بریفنگ لی۔ شہباز شریف کی پاکستان نیوی کے افسران اور سیلز سے ملاقات۔ افواج پاکستان کی پیشہ ورانہ مہارت، جنگی تیاریوں اور غیر متزلزل عزم کو سراہا۔ پاک نیوی کے عزم، عملی مہارت اور مؤثر دفاعی رد عمل کی خوب تعریف۔ وزیر اعظم کا پاکستان کی مسلح افواج کی صلاحیتوں پر مکمل اعتماد کا اظہار۔ بھارت نے حملہ کیا تو ہمارا رد عمل تیز اور وحشیانہ ہوگا۔ بھارت امریکہ ہے، نہ ہی پاکستان افغانستان۔ بھارت اسرائیل نہیں، پاکستان فلسطین نہیں۔ پاکستان بھارتی تسلط کے سامنے نہیں جھکے گا۔ بھارت جتنی جلد سمجھ آئے یہ خطے کے امن کے لیے اچھا ہے۔ بھارت دہشت گردی کی مکمل سرپرستی اور حوصلہ افزائی کر رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں جو ہو رہا ہے وہ بھارت کا کیا دھرا ہے۔ مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا ہے۔ DGI SPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا ترک نیوز ایجنسی کو انٹرویو۔ پاکستان نے بھارت کا شاہین میزائل کے استعمال کا دعویٰ بے بنیاد قرار دے دیا۔ نام نہاد جوہری بلیک میلنگ کا بھارتی دعویٰ من گھڑت ہے۔ بعض بھارتی میڈیا ادارے تاحال گمراہ کن بیانیاں پھیلا رہے ہیں۔ بھارتی فوج نے خود اپنی جاری کردہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دی۔ پاکستان نے آپریشن بنیاد مرصوص میں فتح F1 اور F2 میزائل استعمال کیے۔ پاکستان کی جدید گائیڈڈ میزائل، ڈرونز اور آرٹلری نے دشمن کے اہداف کو نشانہ بنایا۔ بھارتی فوج کی خاموشی اعتراف شکست کے مترادف ہے۔ گمراہ کن مہم بھارت کی آپریشن سندور میں ناکامی چھپانے کی کوشش ہے۔ اشتعال انگیز خبریں خطے کے امن کے لیے خطرہ ہیں۔
दफ्तर खारजा का भारतीय मीडिया के शाहीन मिसाइल के इस्तेमाल से मुतालिक बेबुनियाद दावों पर रद्द-ए-अमल। भारतीय जारिया दुनिया भर में बेनकाब करने का मिशन। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार चीन के 3 रोज़ा दौरे पर बीजिंग पहुंच गए। हवाई अड्डे पर चीन के आला हुकाम व पाकिस्तानी सफ़ीर खलील हाशमी ने इस्तकबाल किया। इसहाक डार चीनी मनसब से दो तरफा अमूर और जनूबी एशिया में बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेंगे। पहलगाम वाक़े पर भारत ने पाकिस्तान पर झूठे इल्ज़ामात लगाए। भारत का ब्लेम गेम बेनकाब हो चुका है। दुनिया जान चुकी पाकिस्तान पर आए तमाम इल्ज़ामात गलत थे। दौरे से पाकिस्तान चीन के मिसाली ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। चीन रवानगी से कबल वज़ीर ख़ारजा की गुफ्तगू। पीटीआई ने भारतीय जारियत पर बैरून मुल्क वफ्द भेजने पर एतराज़ उठा दिया। हुकूमत का बैरून मुल्क वफूद भेजने का फैसला बड़ी अच्छी बात है। बदकिस्मती से बनाई गई कमेटी में अपोजिशन का कोई रुकन शामिल नहीं। हुकूमत ने तंग नज़री का मुजाहरा किया है। हुकूमती सतह पर अपोजिशन की कोई नुमाइंदगी ही नहीं। सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी का कमेटी में नाम शामिल नहीं। हुकूमत ने अपोजिशन को बिल्कुल साइड पर करने की नई रिवायत डाली है। भारत में अपोजिशन जमात कांग्रेस पार्टी के कई लोगों को कमेटी में शामिल किया गया। हम अपने पार्लियामेंटेरियंस को अपने अखराजात पर बैरून मुल्क भेजेंगे। हम बैरून मुल्क पाकिस्तान का केस लड़ेंगे। हमें भारत से अभी भी ख़तरा है। मशरक़ी सरहद पर ख़तरात अभी टले नहीं। अगर ये कौमी मसला है तो सबको साथ लेकर चलें। सेनेटर शिबली फराज का हुकूमत को मशवरा। जंग की हालत में अपोजिशन ने कौमी यकजहती का मज़रा किया। जब पार्लिमानी वफूद जाएंगे तो अपोजिशन अरकान शामिल होंगे। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की यकीन दहानी। भारत से कशीदगी। पाक ईरान कौमी सलामती के मशीरों का टेलीफोनिक रब्ता। दोनों मुल्कों के दरमियान सियासी, इक़्तिसादी, सिक्योरिटी ताउन की अहमियत पर जोर। ईरानी कौमी सलामती मुशीर जनरल अली अकबर अहमद यान ने कहा कि ईरान और पाकिस्तान खित्ते के अमन से दुश्मनों को खेलने की इजाज़त नहीं देंगे। दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन खित्ते के मफादात और सलामती के लिए फ़ायदेमंद है। दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन जारी रहेगा। मुल्की सरहदों का तहफ़्फ़ुज़। पाक फ़ज़ाइया हर कीमत अदा करने को तैयार। शुहदा की खदमात और कुर्बानियाँ हमेशा कौम की यादों में नक्श रहेंगी। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद के करामत। गुरेसा से इज़हार ताज़ियत। कहा कि शुहदा को गैर मुतज़लज़ल अक़ीदत से नवाजा जाएगा। दुश्मन के हमले के दौरान स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ ने फ़र्ज़ शनासी की आला मिसाल कायम की। सरबरा फ़ज़ाइया ने CMH रावलपिंडी का भी दौरा किया। ज़ख्मी जवानों और शहरियों की आयादत की। पाक फौज के 2 जवान वतन पर कुर्बान। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में मुतअद्दिद ऑपरेशन। इंडियन प्रॉक्सी फितना अल खवारिज के 9 दहशतगर्द मारे गए। लकी मरबत में इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता 5 खवारिज जहन्नुम हासिल। मीर अली में खवारिज का सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर हमला। भारतीय हिमायत याफ्ता 2 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। शदीद फायरिंग के तबादले में लांस नाइक साबिर अफरीदी और सिपाही फरहाद अली तूरी शहीद। बन्नू में दूसरी कार्रवाई के दौरान 2 भारतीय स्पॉन्सर्ड ख्वारिज मारे गए। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। इंडियन प्रॉक्सी बलोच लिबरेशन फ्रंट के 3 दहशतगर्द हलाक। जिला वरान में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर फोर्सेस का ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले में भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द यूनस मारा गया। 2 ज़ख्मी। तुरबत में सिक्योरिटी फोर्सेस की दूसरी कार्रवाई। भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द सरगना सबरुल्ला और अमजद और बिच्छू हलाक हुआ। मैं दुनिया न्यूज़ का शुक्रिया अदा करने आया हूँ। मैं मीडिया हाउसेस के दौरे कर रहा हूँ और पाकिस्तानी मीडिया के रोल का एतराफ़ कर रहा हूँ कि उन्होंने एक बहुत बेहतरीन बड़ा उम्दा किरदार अदा किया इस जंग में। दुश्मन जो है उसने मुँह की खाई है, बुज़दिल भी है, बदनीयत भी है। वो कभी ना कभी हो सकता है कभी कोशिश करे। अल्लाह ताला का शुक्र है कि सीज़ फायर मेंटेन हो रहा है, अच्छे तरीके से मामला चल रहे हैं। पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक सतह पे भी बड़ी सक्सेस मिली है और मोदी हैज़ रन आउट ऑफ ऑप्शंस। तो हम तो अब अमन की बात कर रहे हैं कि अब इकनॉमिक तरक्की की तरफ जाए मुल्क। दुश्मन बुज़दिल और बदनीयत है, मिस एडवेंचर की कोशिश कर सकता है। किसी भी मुहिम जोई का ऐसा जवाब देंगे भारत उठ नहीं सकेगा। दोबारा ऐसी कोशिश की तो दुश्मन मुंह की खाएगा। मुसल्लह फ़ौज पूरी तरह तैयार है। नरेंद्र मोदी के पास ऑप्शन ख़त्म हो गए हैं। हम अमन के ख्वाह हैं।
खित्ते में अमन चाहते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का दुनिया न्यूज़ ऑफिस इस्लामाबाद का दौरा। पाक भारत कुशीदा सूरत हाल में दुनिया न्यूज़ के किरदार की तारीफ। चीन ताउन के सामने भारत बेबस। आलमी मीडिया का एतराफ़। पाकिस्तान और चीन का दाई ताउन जंगी बरतरी में तब्दील। चीनी साख्ता J-10C तैयारों और PL-15 मिसाइलों ने भारतीय फ़ज़ाइया के कई जंगी तैयारे मार गिराए। फ्रांस, बरतानिया और अमेरिका के मीडिया इदारों ने चीनी टेक्नोलॉजी की बरतरी और पाकिस्तान की अस्करी कामयाबी का एतराफ़ किया। दी इकोनॉमिस्ट ने लिखा कि चीन के हथियारों ने पाकिस्तान के हाथों अपनी पहली बड़ी जंगी आजमाइश कामयाबी के साथ मुकम्मल कर ली। जदीद चीनी टेक्नोलॉजी से लैस पाक फ़ौज ने भारत की अस्करी मनसूबाबंदी को बुरी तरह नाकाम बनाया। अरबों डॉलर्स के भारतीय राफेल तैयारे चीनी हथियारों के मुकाबले में बेअसर साबित हुए। दिफाई माहिरीन के मुताबिक चीन से हासिल करदा एयर डिफेंस सिस्टम्स, ड्रोन्स और हाइपरसोनिक मिसाइलों ने पाकिस्तान को खित्ते में तकनीकी बरतरी दिलाई। वक्त बहुत कम है, आवाम के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। मुजमुई परफॉर्मेंस बेहतर रही मगर बेहतरी की बहुत गुंजाइश है। कारकर्दगी में हमारा मुकाबला किसी साबिक़ा हुकूमत से नहीं, खुद से है। महकमे करप्शन से मुकम्मल पाक नहीं हो सके। मेरे होते हुए करप्शन अफसोसनाक है। करप्शन के खिलाफ जामे क्रैकडाउन करना होगा। आवाम से रिलीफ का हकीकी एहसास ही कामयाबी है। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत 6 घंटे तवील खुसूसी इजलास। वज़ीर आला पंजाब ने 12 अजला के सालाना तरक्याती प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। अजला में ब्यूटिफिकेशन और इंसदाद तजावज़ात ऑपरेशन का जायज़ा। तमाम तहसीलों के रोड्स, मार्केटों और बाज़ारों की पायदार अपलिफ्टिंग का फैसला। मरियम नवाज का हर शहर में मॉडल रिक्शा स्टैंड्स बनाने का हुक्म। रोड्स के दरमियान बिजली के खंभों को हटाने के लिए इक़दामात की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कतर के सफ़ीर की मुलाकात। पाकिस्तान और कतर के दरमियान ताल्लुकात समेत दो तरफ़ा उमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़फायर के बाद की सूरत हाल पर भी बातचीत। मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तान हमेशा अमन का दाई रहा और हम खित्ते में पायदार अमन चाहते हैं। कतर पाकिस्तान का काबिल एतमाद शराकतदार है। कतर के साथ ताल्लुकात को काबिल फ़ख्र असासा समझते हैं। सुना है मेरे खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जा रही है। जो दोस्त ये शो पूरा करना चाहते हैं कर लें। तहरीक आ भी गई तो उनके अपने लोग साथ नहीं होंगे। PTI के बहुत से अरकान तहरीक लाने वालों का साथ नहीं देंगे। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक की गैर रस्मी गुफ्तगू। हमने कभी नहीं कहा कि हम आदम एतमाद लेके आ रहे हैं स्पीकर के खिलाफ, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ या प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ। ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ। खान साहब के साथ मेरी मुलाकात होती है, हम इंस्ट्रक्शन लेते रहते हैं। खान साहब के इंस्ट्रक्शन में बाहर जिक्र नहीं करता, पर आप दुआ करें हालात बेहतर हो। खान साहब के साथ किसी भी गैर सियासी सारी मुलाकातें ये जो हमारी होती है, इसके अलावा और कोई मुलाकात नहीं हुआ। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर के अदम एतमाद की खबरों की तरदीद कहते हैं कि हमने कभी भी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर या वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद का नहीं कहा। मैं नहीं जानता असद कैसर ने ये किस अंदाज में कहा है। हमारा ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ। फिलहाल कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, लेकिन मुज़ाकरात हो